So in last class, we were talking about function of two variables. If the function of two variables, say x and y, then first, what will be the first order partial derivative with respect to x and with respect to y? We have talked about in last class. Also, the fundamental formula of del f upon del x and del f upon del y, we talked in last class. Today, uh, I will take some small, some fundamental examples of first order partial derivatives. After that, we will do second order partial derivative, the fundamental formula of second order partial derivative, and their corresponding fundamental examples. And after that, we will do some advanced question of partial differentiation. So just give me a second. I'm just presenting my screen. Just a minute. Okay, just wait. Just wait. Okay, the screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So in last class we talked about function of two variables, the domain of function of two variables, and how we can determine the value of function of two variable at different values of x and y. This is all we discussed. After that, we discussed if there is function of x and y, then first order partial derivative will be del f upon del x and del f upon del y with respect to x and y respectively, and these are the fundamental formula we discussed. और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवीजन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो ठीक रहेगा. Now I will take one question, one fundamental question of first order partial derivative. Okay, so let f of xy is equal to 3x square y plus x ln y. ln y मतलब हो गया हमारा log y. Now we are finding del f upon del x, which is fx, the first order partial derivative with respect to x, and fy, that is del f upon del y, first order partial derivative with respect to y. So this is basically del f upon del x. What is the meaning of del f upon del x or fx? We are differentiating the function f with respect to x one time partially. तो अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो y को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे. तो करते हैं इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए. So in first term y is constant as it is, 3 is constant as it is, differentiation of x square is 2x. So overall 6x square plus ln y, since y is constant, so ln y or log y will be constant as well. So log y is constant and differentiation of x is 1. So we didn't mention 1. So del f upon del x will be 6xy plus ln y. Similarly, del f upon del y,
del f upon del y का मतलब है f का y के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग x एज ए कांस्टेंट. So 3x square is constant. This is as it is. Differentiation of y is 1 plus x constant as it is. Differentiation of ln y is 1 upon 1. So you can check it. This is del f upon del x and this is del f upon del y. Any question you may ask, please. So will you please repeat this portion once? Fy1, Fy wala portion. Fy. Yes, sir. Yes, sir. What is the meaning of Fy? Del f upon del y. It means differentiating with respect to y, taking x as a constant. तो इसका आप डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कीजिए, x को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए. तो 3x स्क्वायर इज कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, so 3x स्क्वायर plus x is constant because we are differentiating with respect to y partially, so x is constant as it is. Differentiation of ln y is 1. So del f upon del y will be 3x square plus x upon 1. Any other doubt? It's a fundamental question. Okay? हाँ सर ठीक है. Let's take one more question, one fundamental question. There is a function of two variable f of xy is equal to 3x square y minus 2 plus y cubed here. Now, what will be the value of fx? Fx means del f upon del x. तो del f upon del x का मतलब ये हुआ, आपको डिफरेंशिएशन करना है f का x के रेस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट एज्यूम करना है. तो y को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं फर्स्ट टर्म में. डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर, 3 भी कांस्टेंट है, तो 3y तो कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, दैट इज 6x स्क्वायर, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, हमने मेंशन नहीं किया. Since y is a constant, so differentiation of y will be 0. So del f upon del x will be 6x. Now del f upon del y, differentiating f with respect to y, taking x as a constant. So 3x square is constant. Differentiation of y is 1, that is 3x square. Differentiation of 2 is 0, plus differentiation of y cube is 3y square. So it's a simple differentiation. If you are differentiating with respect to x, you have to assume y as constant. If you are differentiating with respect to y, you have to assume x as constant. I am talking about function of two variables. One more example, one more fundamental, the basic example, the simple example, that fxy is equal to 2x plus 3y minus 2. Then del f upon del x or fx will be 2 only, because we are differentiating with respect to x, taking y as a constant. तो y constant है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया x के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन सिंपली 2 हो गया. तो del f upon del x is 2. And del f upon del y, differentiation with respect to y, taking x as constant. तो x अगर constant है तो इसका differentiation 0 हो गया, इसका differentiation 0 हो गया, तो ये by default भी constant है और इसका differentiation y पर इसका 3 हो गया. Anybody, any doubt for the in these fundamental questions of first order partial derivatives? Any question, please? No, sir. No sir. Okay. मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसका रिवीजन जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आ जाए इसीलिए. Anyways, so if there is function of x and y, then we can differentiate with respect to x or with respect to y. हम सिर्फ x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं या y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं.
राइट, अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई के लिए। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन वही है हमारा, द सेम फंक्शन, there is a function of two variable. I am talking about the function of two variable only, function of x y. तो सबसे पहला है f x x। देखिए जब यहाँ सिंगल x होता है तो उसका मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अगर यहाँ दो बार x है तो इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक बार और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको देखिए, del upon del x of del f upon del x. One more time differentiation of f with respect to x partially. So you can write it del square f upon del x square. तो आप इसे दो शब्दों में बोल सकते हैं। यू में आप या तो ये बोल सकते हैं कि f फंक्शन का हम दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का एक बार और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। So this is f(x)(x), that is del square f upon del x square, or you can say del upon del x of del f upon del x. Now f(y)(y), it means del square f upon del y square, or we can say we are differentiating one more time del f upon del y with respect to y. Del upon del y of del f upon del y. Now fxy, देखिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। fxy का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये सफिक्स का ऑर्डर अच्छे से समझिएगा। सफिक्स का ऑर्डर क्या है? जो वेरिएबल सफिक्स में बाद में आ रहा है, y यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, तो जो सेकंड पोजीशन पे है वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जो वेरिएबल सेकंड पोजीशन पे है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और जो वेरिएबल फर्स्ट पोजीशन पे है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जो वेरिएबल फर्स्ट पोजीशन पे है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, fxy की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा सा। इसका मतलब सीधा सा है कि हमें देखिए f(x)(x) का क्या मतलब होता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का एक बार और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। f(y)(y) का क्या मतलब होता है? डेल एफ अपॉन डेल y का y के रेस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिमिलरली fxy का क्या मतलब है? fxy का मतलब है कि ये जो fx है इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और fyx का क्या मतलब है? ये जो fy है इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ रहे हैं? ये जो fx है, ध्यान से देखिए, ये जो fx है इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये जो fy है इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आप देख सकते हैं fx का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल अपॉन डेल y ऑफ डेल f अपॉन डेल x, और fy का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल f अपॉन डेल y। आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस एक बार ये इरेज करके समझा देता हूँ। देखिए fxy का क्या मतलब है? ये fx है, इस fx का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और fyx का क्या मतलब है? दिस fy का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो fx का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल अपॉन डेल y ऑफ fx, नो डाउट, और fy का
x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे ये एफ एक्स जो है इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और ये जो एफ वाई है इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे इवेल्युएट करने हैं आपको? एवरीबॉडी हैज गॉट इट? Yes, sir. इनका फंडामेंटल फॉर्मूला मैं अभी करवाऊंगा। यस प्लीज। सर यहाँ पे जो ये एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये वाला नहीं समझा सर, ये कैसे? देखिए ये प्रेजेंट करने का तरीका है बेटा। आप देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, इसे आप कैसे लिखेंगे? देखिए आप मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसे आप लिखना चाहेगा ऐसे लिखेंगे ना, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ऐसे लिखेंगे ना। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? एक बार अनम्यूट कीजिए। यस सर, यस सर। एक बार देखिए बेटा, आप डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऐसे लिखेंगे। हाँ, अब इसको क्लब करके कैसे बोलेंगे? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स स्क्वायर, ये बोलेंगे। हाँ। जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करते हैं वैसे बोलेंगे ना। हाँ सर। वेरी गुड। अब मैं इसको करता हूं, डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल एक्स। बेटा अनम्यूट कीजिए और बताइए इसको क्लब करके क्या बोलेंगे? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। गॉट इट? हाँ सर, ये एक बार रख दीजिए, मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज प्लीज, बाकी रिकॉर्डिंग में देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके। और किसी को डाउट है? दीज आर द नोटेशंस, दीज आर द नोटेशंस। आपको डिफरेंशिएशन तो पुरानी स्टाइल से करना है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए, y को रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए। डिफरेंशिएशन करने का स्टाइल पुराना वाला ये, बट प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है वो ये वाला है। दीज आर द नोटेशंस कि अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स एक्स का क्या मतलब होता है, एफ वाई वाई का क्या मतलब होता है, एफ एक्स वाई का क्या मतलब होता है, और एफ वाई एक्स का क्या मतलब होता है। सो दीज आर द नोटेशंस। There are some fundamental examples of second order partial derivatives. ध्यान से देखिएगा। This is function of x y 3x square y plus x ln y or x log y. First we are finding del f upon del x. Del f upon del x आप आराम से find कर सकते हैं। Differentiation of this function with respect to x only taking y as a constant. This will be del f upon del x. And this will be del f upon del y. Now, f(x(x), f(x(x) का मतलब है एक बार और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये जो f(x) आपका फंक्शन बना है ये वाला, इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y को कांस्टेंट एज्यूम कर दीजिए। तो इसका एक बार और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6y कांस्टेंट है, x का 1 दैट इज 6y प्लस y कांस्टेंट है तो ln y भी कांस्टेंट हो गया, उसका 0 हो गया। सो f(x(x) विल बी 6y। नाउ f(y)y, f(y)y का क्या मतलब है? डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर। इट मींस वन मोर डिफरेंशिएशन ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये fy है, इसका y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए पार्शियली, x को कांस्टेंट एज्यूम कर दीजिए। तो कीजिए, x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, मेंशन नहीं किया हमने। प्लस x कांस्टेंट है, x एज इट इज, 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। सो दिस विल बी f(y)y। नाउ fxy, fxy का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, fx का y के रेस्पेक्ट में, fx फंक्शन का
क्योंकि एफ एक्स भी एक फंक्शन ही है। जैसे एफ एक फंक्शन है, ये देखिए आप, एफ एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वैसे एफ एक्स भी तो एक फंक्शन है, देखिए इट्स अगेन ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एफ वाई भी तो एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। तो एफ एक्स वाई का क्या मतलब है, एफ एक्स फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये एफ एक्स फंक्शन दिख रहा है आपको, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो 6x कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ln y का डिफरेंशिएशन 1/1। नाउ f(y)(x), f(y)(x) का मतलब क्या हुआ, fy फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, fy फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये fy फंक्शन है, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो 3x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 6 हो गया, प्लस प्लस x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो y कांस्टेंट है, मतलब 1/y कांस्टेंट, 1/y कांस्टेंट एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। सो f(y)(x) will be 6x plus 1/1। So this is f(x)(x), that is del square f upon del x square. This is f(y)(y), that is del square f upon del y square. This is f(x)(y), that is del square f upon del y del x, and this is f(y)(x), that is del square f upon del x del y. One more interesting thing I would like to tell you, that in 95% cases, f(x)(y) is always equal to f(y)(x). In 95% cases, f(x)(y) is equal to f(y)(x). Not in 100% cases. In 95% cases, these two are equal. ये कब अनइक्वल होते हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। One more question I would like to take. Say f(x)(y) is equal to 3x minus 2y square. So we can find del f upon del x. Simple. Del f upon del y. Simple. Now f(x)(x), that is del square f upon del x square. इसका मतलब इस f(x) का x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात है, 0 होगा। f(y)(y), it means del square f upon del y square. It means इस f(y) का y के रेस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक बार और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका -4। f(x) का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये f(x) है, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। f(y)(x) मतलब f(y) का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये f(y) है आपका, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। So f(x)(x) will be 0, f(y)(y) will be -4, f(x)(y) is equal to 0 and f(y)(x) is equal to 0, and you can see that f(x)(y) is equal to f(y)(x). Any question? Please ask. Any question? Please ask. सर f(x) का मतलब होता है del by del x ना, मतलब Del f upon del x. ठीक है सर। Yes.
Okay, now I would like to tell you the fundamental formulas of second order partial derivatives. आपको मैं याद दिला देता हूँ, आपको मैंने लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के फंडामेंटल फॉर्मूला लिखना सिखाया था अच्छे से। मैंने आपको समझाया था कि कौन सा टर्म कब काम में लेना है, ये मैंने आपको सिखाया था। फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के केस में क्या लिखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई के केस में क्या लिखते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, ये सब मैंने आपको सिखाया था। अब हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए फंडामेंटल फॉर्मूले उसी बेस पे बना सकते हैं। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, इनफैक्ट आप मेरी हेल्प करेंगे। चलिए, एफ एक्स एक्स, इट मीन्स del square f upon del x square, del x square is equal to, कोई बता सकता है मुझे what will be the fundamental formula of fxx? मैंने जबकि लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से इसको बनाना सिखाया था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। Can anybody tell me, please? Sir, limit h tends to 0. Very good. Limit, 1 second. H is tending to 0. fx Yes. plus h. F, fx plus h. F bracket x plus h. No, sir. Then So suffix में h. x suffix में x. Then plus h. plus h यहीं पे. No, sir. Bracket. So simple सा plus h. Oh no, you are wrong. Anybody else? इतना अच्छे से बनाना सिखाया था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग रिवाइज किया कीजिए, रिवीजन किया कीजिए। क्यों नहीं करते हो आप लोग रिवाइज? Sir, limit h tends to 0, f dash x plus h, comma y minus f of x y, f dash x y upon h. समझ में नहीं आया, वापस बोलिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, देन Dash, f डैश। yes sir, ठीक है, f डैश, देन x plus h, हाँ, y यस, minus f dash हाँ, x y हाँ, upon h. यस, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Anisha Jangid. अनीशा, वंडरफुल, वेरी गुड। देखिए, अनीशा ने बिल्कुल सही बताया। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? एक सिंपल सा फंडा मैंने आपको समझाया था। एफ एक्स एक्स या डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ एक्स। अभी बताया था नहीं बताया था मैंने आप सबको? यही तो मतलब है इसका, हाँ सर। राइट? अब इसका मतलब समझिए, आप रटना छोड़िए चीजों को। मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरह समझाया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। यही मतलब है ना? एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ सर। हाँ। जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करते हो तो आप एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो। यहां पे आप एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बस। तो जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स में एफ काम में लेते हो तो यहाँ डेल, इस केस में क्या काम में लोगे आप? एफ एक्स काम में लोगे, सिंपल। याद आया? ये जब आपने फाइंड किया था डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो आपने राइट हैंड साइड में फॉर्मूले में क्या काम में लिया था? इस एफ को काम में लिया था नहीं लिया था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई, एफ काम में लिया था ना? यस और नो? हाँ सर। यस। तो यहां पे आप किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? सिर्फ इसको देख के बताइए मुझे, सिर्फ इसको देख के बताइए, आप किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में?
f dash x fx का Del f. fx का, तो बस लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए fx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x प्लस h कॉमा y, क्या हो गया भाई? ओके, x प्लस h कॉमा y माइनस f x कॉमा y डिवाइडेड बाय h। आप समझ में आया बाकी सब लोगों को? एनी डाउट? No, sir. No doubt. गॉट इट? मैंने बताया था अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप h काम में ले लीजिएगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो k काम में ले लीजिएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x में चेंज होगा, y में चेंज नहीं होगा, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y में चेंज होगा, x में चेंज नहीं होगा। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो फंक्शन यहां आना चाहिए। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप ये जरूर बताएंगे f y y। What is the meaning of f y y? Del square, सॉरी चलो ये भी लिख लेते हैं, del square f upon del y square Del y square, yes. is equal to del upon del y of Fy sir. f y। ये बोल रहा था, आप अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो सब चीजें समझ में आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, कोई बताएगा फॉर्मूला? Sir, limit k tends to 0. Once again, limit k is tending to 0. Yes, F of y. f y, not f of y, Yes, sir. F y Fix में f होगा y, sir. f y सफिक्स में, क्योंकि ये फंक्शन f y है, करेक्ट। in bracket x comma y plus k x comma y plus k minus fx minus fx. f y Yes, sir. X F- minus x comma y x comma y divided Upon by k. k. Very good. What's your name? Sir, Radha Krishna. राधा कृष्ण। वंडरफुल, वेरी गुड। तो यहां देखिए फंक्शन एफ वाई है इसलिए यहाँ फंक्शन एफ वाई आएगा, y के रेस्पेक्ट में है इसलिए चेंज सिर्फ y के रेस्पेक्ट में होगा, और k अगर हम काम में लेना चाहें तो k होगा। गुड, चलिए अब ये बताइए f x y, इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ एक्स। अभी समझाया था बार बार मैंने कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, आई रिपीट, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में। चलिए कौन बताएगा? Limit k tends to 0. 1 minute. Limit k is tending to 0. fx f suffix में x एक बोलो एफ एक्स bracket हाँ, x comma y plus k वेरी गुड, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस के bracket बंद minus माइनस f suffix में x एफ सफिक्स एक्स bracket में x comma y एक्स कॉमा वाई whole upon k. होल अपॉन के। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Aditya Rao. आदित्य राव। गुड, वेरी गुड। तो आप सबको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। व्हेन देयर इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नोटेशंस क्या हैं,
आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल फॉर्मूलाज क्या हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे इवेल्युएट किया जाता है। एनी डाउट? आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग। No, sir. Please take the screenshot of this slide, everybody. अदरवाइज कॉपी पेन लेके तो आप रखते ही हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी तो हमारा बाकी तो मैं रिकॉर्डिंग तो शेयर करूंगा आपसे। Okay. Any question, guys? Any kind of question you want to ask? Please ask. सर Yes. यहाँ पे डिफरेंस तो सिर्फ यही है ना कि पिछले केस पे वो सफिक्स नहीं था और इस केस पे सफिक्स आ रहा है ना सर, यही तो डिफरेंस है। बस ये डिफरेंस, बिल्कुल ये डिफरेंस है, क्योंकि पिछले केस में फंक्शन f था, हाँ इस केस में फंक्शन कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, हाँ इधर fx है या fy है, बस यही डिफरेंस। स्टाइल वही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो बेटा वही है ना, स्टाइल तो डिफरेंशिएशन की वही है। वी आर नॉट चेंजिंग द स्टाइल, राइट? हाँ यस सर, यस दैट्स ठीक है सर। Anybody, any other doubt, please? Any question? Please. सर उस दिन आपने ये असाइनमेंट पे जो सम्स दिए थे उसमें वहां से एक तो डाउट है, तो मैं क्या आपको यहाँ पे बोलूंगा या व्हाट्सएप पे डाल दूंगा? क्या नहीं, आप एक बार पूछिए, अगर यहाँ सॉल्व करना होगा तो यहाँ बता दूंगा, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे कर लेंगे। बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज प्लीज। अनिकेत जैन इज आस्किंग सिलेबस क्या होगा सर मिड टर्म का? बेटा आई विल लेट यू नो वेरी सून, प्लीज वेट, प्लीज वेट, आई विल लेट यू नो वेरी सून। यस सर, यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है 36 factorize into two factors, 36 factorize into two factors in such a way that sum of the factors is minimum, then the factors are, ये ऑप्शंस जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 2,18, बी में है 9,4, सी में है 3,12, डी में है none of these। कैसे करेंगे, आपने क्या सोचा? सर ये फैक्टराइज मतलब फैक्टराइज ही तो करना है, मतलब ये फैक्टराइज देखिए देखिए देखिए, आपको मिनिमम किसको बनाना है? सर मिनिमम नहीं समझा सर, क्या बोले सर? क्वेश्चन रीड कीजिए। 36 factorize into two factors in such a way that the sum of factorize, ये सर sum of factorize जो है उसको मिनिमम मतलब आपका जो मेन फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? x प्लस वाई बनेगा, नहीं बनेगा? x प्लस वाई, सम बोला है ना? हाँ देखिए, आप दो फैक्टर एज्यूम सर, x एंड y। देखिए, दो फैक्टर एज्यूम कीजिए, x एंड y। एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ थोड़ा जल्दी शॉर्टकट में लिख लीजिए। दो फैक्टर आपने एज्यूम किए, x एंड y, राइट? अब सिंपल सी बात है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 36 होगा या नहीं होगा? हाँ सर, होगा होगा होगा। और मिनिमम किसको करना है आपको? x प्लस वाई को। हाँ। तो आपका जो मेन फंक्शन बना वो बन गया, मान लो फॉर एग्जांपल f एज्यूम कर लो, लेट फंक्शन f इज इक्वल टू x प्लस वाई। लेट फंक्शन f इज इक्वल्स टू x प्लस y। ओके सर। अब इसे मिनिमाइज करना है। हाँ सर। अब इसे मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन वेरिएबल तो एक होना चाहिए, यहाँ तो दो वेरिएबल है। x, हाँ सर। तो जो एक्स वाई इज इक्वल टू 36 है, हाँ, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल के इसमें डाल दीजिए। एक वेरिएबल के वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल के डाल दूं, मतलब सर x इज इक्वल्स टू, मतलब x इज इक्वल्स टू 36 माइनस y, राइट?
इसको वहाँ पे 36 डाल। 36 अपॉन y। कैसे सर, नहीं समझा। एक्स वाई इज इक्वल टू 36 है ना, हाँ। तो y का वैल्यू क्या होगा? तो y इज इक्वल्स टू होगा 36 माइनस x। अरे बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू 36 है ना। xy, अच्छा xy पूछ रहे हो सर आप? मैंने सोचा x प्लस 1 है। नहीं एक्स वाई फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ सर, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू 36 है, हाँ, तो y का वैल्यू क्या होगा? 36 अपॉन एक्स। 36 अपॉन x। हाँ सर, ठीक तो है। 36 अपॉन एक्स आप उस फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो वो पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर। हाँ फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाँ f डैश x, उसको जीरो पुट करना, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना, फिर f डबल डैश फाइंड करना, स्टेशनरी पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करना, राइट। हाँ। फिर डबल डेरिवेटिव जिस स्टेशनरी पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा वो हाँ। स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा हो जाएगा। ओके सर, समझ गया। आप समझ गए आप? हाँ ठीक। ऐसे सर यस। सर इसमें दो स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, +6 और -6। तो सर +6 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो नो -6 नो पे नहीं। नो 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 स्टेशनरी पॉइंट तो कुछ भी आ सकता है बेटा। स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रख के चेक कीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ही सर +6 पे आ रहा है सर पॉजिटिव, तो मिनिमा। तो हाँ तो तो सर +6 लेकिन सर -6 करने पे मिनिमम आ रहा है ना। अगर -6 ले तो एक -6 तो दूसरा भी -6 हो जाएगा, दोनों का सम नो बेटा, आप मिनिमम नहीं बोल रहे, आप समझो मेरी बात को। मिनिमा एफ डबल डेल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस स्टेशनरी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है ये बताइए? 6 पे, 6 पे +6। यस +6, तो x इज इक्वल टू 6 आपका मिनिमा हो गया। पूरी बात सुनना मेरी, x इज इक्वल टू 6 आपका मिनिमा हो गया। अब आपका जो रिजल्ट था वो था आपको गिवन था एक्स वाई इज इक्वल टू 36 गिवन था। यस सर। x, तो अगर आप x का वैल्यू 36 6 यहाँ कितना है आपका? 6 है ना। x Yes, का sir. वैल्यू 6 यहाँ रख देंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 6 y का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब 6,6 जो होगा, ठीक है, वो एक्चुअली मिनिमा होगा जिस पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा बेटा। ओके सर। हाँ, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जो 4 ऑप्शन है ना उनमें से देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन बताइए मुझे। कैन यू हियर मी? यस सर, वो देखना पड़ेगा ऑप्शन तो। देखिए जो ऑप्शंस हैं उनमें जैसे फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन है 9 4, यस तो सर। 9 + 4 अगर देखें तो 13 बन रहा है। दूसरा ऑप्शन होगा 6 6, तो 6 + 6 12 बन रहा है। ऐसे मिनिमम जो आएगा वो 6 6 पे आएगा। तो 6 ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज है शायद। हाँ तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके यस। okay so thank you very much all of you. If you have any doubt you can WhatsApp me anytime. I will definitely reply when I get the time. Thank you. Take care all of you. Take care. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you beta. Thank you all of you.